Welcome back to Market Pulse with Aditya and Nikita. Let's get started with the multi-time frame analysis for Nifty and Bank Nifty. Before getting into the analysis part, I would like to wish each one of you a very happy Diwali and a prosperous New Year. और नए साल में हमारी यही कामनाएं है कि that we also grow. Of course, we will be sharing our logics और price action के हिसाब से. But at the same time, we need your support. So please do like our channel if you will really find our stuff useful and worth. So now without wasting much time, let's get started. So starting with the monthly time frame, which is Nifty. So after a consecutive 11 months in a row, for the first ever time, we saw a red candle in the month of October where we saw a close below the previous month's low. So this was the September month low and this is the October. So for the first month, this has broken the low of the previous month, which is like October closed below the month of September. So yes, there is some sort of a bend. So if you, let's say if you can't see this kind of a bend on this candlestick pattern, all you have to do, I have shared this earlier also, but for those of you who have joined us recently, just go on this particular line chart. You will clearly see that there is a bend because this is where the bend has happened. So this is where you can see that there is a clean bend now. Of course, from 26,300 all the way till 24,300, we have seen a massive 2,000 point fall in case of Nifty. Now let's okay, obviously there is some sort of a correction, but then for a monthly time frame to turn into bearish, it has to be either some sort of a this one wherein the moment this October lows are taken out, then we can assume more downfall in case of monthly. Now let's go on the weekly time frame. So for those of you who remember this, that in the last week we discussed, अगर 4 रेड कैंडल्स इन अ रो होता है जो कि लास्ट पूरे ईयर में हुआ नहीं है, तो मोर चांसेस है कि यहाँ से मार्केट घूमने के चांसेस है. और अगर 5 रेड कैंडल्स इन अ रो मिलते हैं वीक में, तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो जाता है वो थोड़े से रिवर्सल के लिए. तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि अभी ऑल टाइम हाई के पार चले जाएंगे. आई एम टॉकिंग अबाउट सम रिवर्सल. उसके बाद हम लोग सी देयर आर टू ऑप्शन, मतलब 2 पॉसिबिलिटीज. ओके, लेट्स से मार्केट यहाँ पर आया है और उसके बाद यहाँ पर आया है, ठीक है. तो यहाँ से 2 पॉसिबिलिटी होती है. एक तो मार्केट यहाँ पर तक जाएगा और फिर यहाँ से यू टर्न लेके वापस नीचे आ जाएगा, इन विच केस ये पहला वाला प्रीवियस हाई नहीं ब्रेक कर रहा है. दूसरा ऐसा हो सकता है, ये देखिएगा ये था पहला वाला मेरा. दूसरा वाला ऐसा हो सकता है कि जहां पर मार्केट ने पहला वाला तो हाई ये किया है और उसके बाद ये बाउंस करके दूसरा एक हाई बना लेता है, नया वाला हाई, ठीक है. तो ये 2 ही पॉसिबिलिटीज होती है. तो इसका बट इन दोनों पॉसिबिलिटीज में एक चीज वेरी क्लियर है, दैट देर इज सम सॉर्ट ऑफ एन अपमूव पॉसिबिलिटी है. अब वो अपमूव किधर तक लेनी है वो हम उसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे थोड़ी देर में. सो व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग, ईदर इट शुड बी अ बाउंस और सम सॉर्ट ऑफ या तो बाउंस होके नया हाई मारे या तो फिर बाउंस होके एक छोटा शॉर्ट टर्म बाउंस. बट इन ईदर केस एक बाउंस एक्सपेक्टेड है, ठीक है. तो अब उसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं. नाउ इफ यू guys would have noticed, कल तो हमारे लिए just 1 hour की ट्रेडिंग सेशन थी because of the मुहूर्त ट्रेडिंग, but I have saved the chart also. Wait, so because of this yesterday's 1 hour trading we have come in this kind of a green kind of a week, but otherwise मैंने जैसे सेव किया था, मैंने ये फ्राइडे को हमारी जो सेशन हुई, सॉरी थर्सडे को जो हमारी सेशन हुई उसके बाद मैंने ये सेव किया था, ये वाला पर्टिकुलर. तो यहाँ पर अगर आप देखोगे वीकली 31 अक्टूबर, इफ यू कैन सी दिस, ऑब्वियसली मैंने जब 3:30 को भी देखा था समवेयर अराउंड दिस जोन ही थे, मतलब रेड ही कैंडल थे. तो इफेक्टिवली 1 2 3 4 5 रेड कैंडल्स इन अ रो हो चुकी थी ऑलमोस्ट, बट जस्ट बिकॉज ऑफ येस्टरडेज 1 आवर मुहूर्त ट्रेडिंग ये थोड़ा सा ग्रीन में आके क्लोज किया. नंदलेस ये अभी भी मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है ये कैंडल, बट येस यहाँ से मैं रिवर्सल्स क्यों एक्सपेक्ट कर रही हूँ ये हम देखते हैं. एक तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ये बहुत ही 1 साइडेड फॉल रहा जो कि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेयर ग्रिप में रहा है. दूसरा यहाँ पर 24,000 के आसपास एक राउंड नंबर है जहां पर मार्केट मोस्ट लाइकली सपोर्ट लेने के चांसेस है. एंड लेट्स से इवन दैट गेट्स टेकन आउट, देन द नेक्स्ट नियरेस्ट सपोर्ट इज 23,800 के आसपास, ठीक है. बट एज आई सेड अ बाउंस इज एक्सपेक्टेड. यहाँ पर इसमें वापस आते हैं, दिस बेरिश हेड एंड शोल्डर्स इज स्टिल इंटैक्ट और इसमें मैं डाउनफॉल अभी भी इसमें नहीं इतना देख रही हूँ. द ओनली एंड ओनली रीजन यहाँ पर अगर आप देखोगे ये काफी बार मार्केट अगर आप देखोगे तो मार्केट एक जोन में कहीं ना कहीं फंसा हुआ है. तो ये जोन की जिस भी तरफ ब्रेक करेंगे ऑब्वियसली हम लोग उस तरफ ट्रेड लेंगे. बट जैसे कि मैंने कहा कि ऑलमोस्ट 2,000 पॉइंट्स गॉट वाइप्ड आउट ओनली इन अ सिंगल मंथ, सो आई एम एक्सपेक्टिंग सम सॉर्ट ऑफ अ बाउंस. नाउ let's go on the 15-minute time frame. And okay, before going to the 15-minute time frame, just observe this particular on the daily time frame. Look at the high of this particular candle, 24th October. The high is around 24,500. Then again on 28th October, again 24,500. I'm taking roundabout numbers, okay? So it will be 5-10 points here and there.
29th October again 24,500 and this one again 24,500. So now let's go and check the same on the 15-minute time frame. So जो हम लोग कब से डिफाइन करने की कोशिश, अच्छा अब ये जो टारगेट्स है ये किस चीज़ का टारगेट है, ये मेरा जो एक फॉलिंग वेज पैटर्न का ब्रेकआउट आया था इस दिन, उसका ये टारगेट्स इंटैक्ट है अभी भी, और इसका ये बेसिकली छोटा सा एक ये था, तो उसका टारगेट तब तक इंटैक्ट है जब तक ये लो ब्रेक नहीं होता है 24,086 ये वाला लो, तब तक ये इंटैक्ट है। और लेट्स से अगर उतना भी नहीं अपने को वेट करना है, सो एटलीस्ट इट शुड ब्रेक दिस पर्टिकुलर, ये जो ट्रेंड लाइन के नीचे आके घुसनी चाहिए एटलीस्ट, तब तक वो वैलिड हो जाती है। तो इसके लिए आई हैव केप्ट इट स्टिल इंटैक्ट बिकॉज अब तक उसकी आई नहीं है पूरी थी। सो द 24,500 की कहानी, लेट्स गो बैक टू दिस वंस, ट्वाइस, थ्राइस, 4 times. So as we have learned, the more the number of times particular resistance gets tested, the more weaker it becomes. So which means now this is very weak, and remember we are going to start with a fresh series from November 4th onwards. So I am expecting market कि यहाँ पर जब भी आएगा अब नेक्स्ट टाइम ये यहाँ पर रेजिस्टेंस नहीं लेते हुए ये ब्रेकआउट देने के चांसेस है। 2 टाइप से ब्रेकआउट हो सकती है, या तो जैसे कि यहाँ पर आने के बाद ये इमीडिएटली ब्रेकआउट ही दे दे, एल्स इट विल जस्ट कम हियर, वेट फॉर अ वाइल, जस्ट यहाँ पर छोटा सा एक रेंज बनाए और फिर ब्रेकआउट दे, ये तो और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है सेकेंड वाला। बट आई वोंट बी सरप्राइज्ड अगर ये एक ही साथ में निकल जाए, बिकॉज दिस लेवल हैज बीन टेस्टेड सेवरल टाइम्स। अब यहाँ पर एक और चीज ऑब्जर्वेशन करने वाली बात यह है कि बायर्स ने थोड़ा सा अपना लेवल्स है शिफ्ट किया है ऊपर की तरफ, मतलब ये थोड़ा हायर लोस बन चुके हैं ना छोटा टाइम फ्रेम, मैं बड़े टाइम फ्रेम की बात नहीं कर रही हूँ, बड़े टाइम फ्रेम पे अभी भी मतलब डेली में अगर आप देखोगे अभी भी सेलिंग ही दिखेगी, बट ऑन अ शॉर्टर टाइम फ्रेम मतलब थोड़ा सा बायर्स ने ऊपर, ये देखिए सेम हाइस है और ये हायर लोस है, ठीक है, तो ऐसा काइंड ऑफ पैटर्न। जैसे ही ये ब्रेक होगा तभी हम लोग बिल्कुल भी 24,700 के आसपास कुछ प्लान कर सकते हैं, मतलब इधर तक तो मार्केट एक बार के लिए आ सकती है, उसके बाद देखेंगे हम कि क्या करना है। सो फॉर मंडे, ओके, बिफोर इवन टॉकिंग अबाउट मंडे, आई वांट टू ड्राइव योर अटेंशन टू मेजर थिंग्स। फर्स्ट ऑफ ऑल 5th of November हमें बेसिकली विच इज़ ट्यूसडे, ओके, 5th of November जो कि ट्यूसडे है, इस दिन यूएस की इलेक्शंस के रिजल्ट्स आने वाले हैं। यूजुअली उन लोगों का 5th या 6th कभी तो हो ही जाएगा, तो जस्ट बी अवेयर कि वहाँ पर वॉलेटिलिटी इंडेक्स बढ़ने वाली है और उसकी वजह से हमारे यहाँ पर भी वॉलेटिलिटी इंक्रीज होने वाली। दूसरी चीज ये है कि मतलब बेसिस वॉट एवर गैप अप और गैप डाउन दे आर गोइंग टू, सॉरी, बेसिस वॉट एवर दे आर गोइंग टू क्लोज, वी आर गोइंग टू सी सम सॉर्ट ऑफ अ गैप अप ओपनिंग और सम सॉर्ट ऑफ अ गैप डाउन ओपनिंग। सो माई एडवाइस और रादर वॉट आई वुड बी डूइंग इज आई वुड बी ऑल्सो प्लेइंग वेरी सेफली इन दिस पर्टिकुलर वीक, स्पेशली ओवरनाइट पोजीशंस मैं ना के बराबर लेकर जाने वाली हूँ। इंट्राडे में आई विल सी, एंड दैट टू मेजर इंट्राडे आई माइट सी ओनली, लाइक आई विल स्टार्ट टू डिप्लॉय ओनली आफ्टर 6th ओनली। तो आप भी उसके हिसाब से प्लान कीजिएगा, मतलब नो नीड टू वॉलेटिलिटी में फंसने की जरूरत नहीं है। फॉर दैट इज द रीजन वी आर प्लानिंग दिस वे फॉर दिस करंट वीक। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग मंडे को कैसे ओपन होने वाले मान लीजिएगा, कल तो बेसिकली कुछ भी नहीं हुआ, जो गैप अप हुआ है 24,300 के आसपास आके क्लोज हुआ है। नाउ दिस वन इज एन इमीडिएट सपोर्ट समवेयर अराउंड 24,240, इफ यू सी दिस इज द 240 जोन, ओके। तो अगर मान लीजिएगा मार्केट फ्लैट ओपन हो रहा है, थोड़ा सा नीचे आ रहा है, ये गैप को फिल कर लेगा और ये ऊपर जाने की कोशिश करेगा। जैसे ही ये फर्स्ट कैंडल की हाई को ब्रेक करता है, दैट इज व्हेन वन कैन थिंक ऑफ गोइंग लॉन्ग, और फिर आपको फर्स्ट टारगेट्स इधर रखना है और यहाँ पर आप बुक मत कीजिएगा। अगर यहाँ पर आ जाता है तो प्लीज डोंट बुक आउट। यहाँ पर अगर यहाँ पर आपने लॉन्ग किया है और यहाँ पर आ रहा है तो बुक नहीं करते हुए इसको आप कॉस्ट पे ट्रेल कीजिएगा, ये पर्टिकुलर जोन पे आप कॉस्ट पे ट्रेल कीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद इफ इट लाइक स्टेज हियर देन ओके, देन गिव्स अ ब्रेकआउट, देन इवन बेटर, यहाँ पर आप फिर नया एक क्वांटिटी ऐड कर सकते हो 24,500 के आसपास। और लेट्स से यहाँ पर जैसे आपने ट्रेल किया और वो वापस ऊपर जाने लगा, तो यहाँ पर आप वापस एक बार एडिशन कर ले सकते हो विद अ छोटा स्टॉप लॉस ऑफ अराउंड 400 या 450 के आसपास। सो ये आपके रिवॉर्ड के हिसाब से डिपेंड करता है, आपके लॉट साइज के हिसाब से डिपेंड करता है। सो देयर आर लॉट ऑफ कैलकुलेशन दैट गोस इनटू, जस्ट बिकॉज आई एम कमिंग एंड टेलिंग जस्ट गो लॉन्ग हियर, दैट डजंट मीन यू हैव टू गो लॉन्ग विद योर एंटायर कैपिटल। सी ट्रेडिंग इज अ बिजनेस, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि इसके लिए क्वांटिटी कितनी लगती है, क्या लगती है, पोजीशन साइजिंग कैसी होनी चाहिए वगैरह। सो इफ यू डोंट, ओनली इफ यू हैव दोस काइंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग, देन दिस मार्केट इज फॉर यू। अदरवाइज सिंपली आपके लिए SIPs है, म्यूचुअल फंड्स है, कैश मार्केट्स है, जहां पर आप ट्रेड कर सकते हो। ऑल्सो व्हाटएवर आई एम सेइंग, प्लीज डू चेक विद योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर टेकिंग एनी ट्रेड्स, बिकॉज व्हाटएवर आई एम डूइंग इज प्योरली फ्रॉम एजुकेशनल पर्सपेक्टिव एंड आई एम नॉट अ SEBI रजिस्टर्ड एनालिस्ट, ओके। दैट वाज अ डिस्क्लेमर फ्रॉम माय एंड। और अब मान लीजिएगा कि कल हम लोग अगर गैप अप से ओपन होते तो एक बार के लिए वेट कर लीजिएगा, लेट इट कम डाउन, देन लेट इट टेक अ यू टर्न, एंड व्हेनेवर इट ब्रेक्स द हाई ऑफ द डे, देन करंट डे, देन दैट इज व्हेन यू कैन गो लॉन्ग। इन
in case if it opens with a gap down somewhere around here, there is a support, so most likely it is going to take a U-turn. So यहाँ पर भी आप जैसे ही U-turn लेगा कोई हैमर पैटर्न या कोई W पैटर्न या तो फिर फर्स्ट कैंडल का हाई जैसे ही ब्रेक होगा, that is also one point where you can go long. So in either ways I am looking this level to be taken out now because this level has been tested several times, 24,500. नीचे का हम कब प्लान करेंगे? नीचे का वैसे तो फ्रेश लोस हम एग्रेसिव शॉर्ट्स हम तभी प्लान करेंगे जब हम 24,080 को ब्रेक करेंगे. जैसे ही हमने ये ब्रेक किया तब मैं फिर वो 23,950 या 23,800 तक फिर मैं नए प्लान कर सकती डाउन साइड पे. अग्रेसिव डाउन साइड अब हम तभी प्लान करेंगे जब ये वाला लो ब्रेक होगा. अदरवाइज मुझे ज्यादातर ऐसा लग रहा है कि क्योंकि ये लेवल्स बहुत बार टेस्टेड है, मोस्ट लाइकली 24,500 के ऊपर का ब्रेकआउट देने के चांसेस है. मे बी इन द कमिंग वीक जहां पर देयर इज एन इवेंट लाइंड अप व्हिच इज यूएस इलेक्शंस, उसके हिसाब से दैट वुड बी मोस्ट लाइकली द ट्रिगर पॉइंट. के पहले ऐसा भी हो सकता है कि मार्केट थोड़ा सा रेंज बाउंड भी रह सकता है. तो आप उस हिसाब से अगर रेंज बाउंड रहा विच इज 24,500 और इसके 24,150 या 24,000, तो फिर इसके बीच में स्ट्रैंगल्स माइट प्ले आउट. तो जस्ट बी कॉशियस, बट मोस्ट लाइकली बिकॉज ये लेवल्स इतनी बार टेस्टेड है ना, मुझे ऐसे बहुत स्ट्रांगली फील आ रहा है कि ये वीक इटसेल्फ दिस 24,500 विल बी टेकन आउट. बिफोर डाइविंग इनटू बैंक निफ्टी मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस, यहाँ पर मेरे को एक अनाउंसमेंट करनी है दैट हमने 4 वीक की मेंटरशिप प्रोग्राम हम स्टार्ट करने वाले, विच विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम November 9 एंड दिस टाइम द फर्स्ट डे का ऑफलाइन सेशन जो है अहमदाबाद में होगी. तो जो लोगों को इंटरेस्ट है वो लोग ये पर्टिकुलर रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स भर सकते हो, और अगर आपको जानना है और आपके FAQs है तो आप यहाँ पर भी डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हो. सारे आपके क्वेरीज को हमने रिजॉल्व कर चुके हैं हम लोग. और दिस प्रोग्राम इज स्पेशली फॉर दोस ऑफ यू जिन लोगों को ऑप्शन सेलिंग करनी है, और ये पोजिशनल ऑप्शन सेलिंग है. सो पोजिशनल ऑप्शन सेलिंग इज समथिंग दैट इज गोइंग टू कम बैक अगेन बिकॉज ऑफ द न्यू सेबी रूल्स, जहां पर एक ही एक्सपायरी होगी पर इंडेक्स पर एक्सचेंज. सो NSE की तरफ से निफ्टी होने वाली है और BSE की तरफ सेंसेक्स होने वाली है. तो वापस हम लोग मोर और लेस फ्रॉम 0 DTE वी आर गोइंग टू पोजिशनल. सो दिस इज ऑल अबाउट पोजिशनल ऑप्शन सेलिंग. और इसके अलावा व्हाट वी हैव बीन डूइंग, वन गुड थिंग अबाउट आवर वर्कशॉप और आवर मेंटरशिप प्रोग्राम इज आई वुड लाइक टू से, हम लोग कोई टाइम बेस्ड स्ट्रैटल्स या टाइम बेस्ड स्ट्रैटेजीज नहीं सिखाता है. आई एम नॉट सेइंग दैट डोंट वर्क, दैट डज वर्क फॉर दोस्त ऑफ देम. उनके लिए भी उन्होंने अच्छा शेयर बना के रखा है. आई एम नॉट सेइंग दैट इट डजंट वर्क. आई एम जस्ट सेइंग कि होता क्या है उसमें, जैसे कि 930 की स्ट्रैटल एक टाइम पे बहुत पॉपुलर थी, उसके बाद वो इतनी एक्सप्लॉइट हो गई दैट इट स्टॉप्ड मेकिंग मनी. सो व्हाट हैपेंस, एनीथिंग दैट इज टाइम बेस्ड व्हिच हैज गॉट अ सर्टेन लॉजिक विद रिस्पेक्ट टू टाइम may work for a shorter point of time, but whatever logics that we explain you would have also seen in our YouTube also. हम लोग बहुत ज्यादा प्राइस एक्शन पे डिटरमाइन करते हैं. तो प्राइस एक्शन इज समथिंग दैट रिमेन्स नो मैटर व्हाट, बिकॉज हमने वही सेम प्राइस एक्शन की लॉजिक्स हमने बैंक निफ्टी में लगाए, वही सेम प्राइस एक्शन की लॉजिक्स हमने गोल्ड में लगाई, वही सेम प्राइस एक्शन की लॉजिक्स हम लोग अब BTC पे भी लगा रहे हैं. सो अगर आप देखोगे तो प्राइस एक्शन के लॉजिक्स वर्क्स अक्रॉस टाइम. सो दैट इज द ओनली गुड पार्ट अबाउट आवर मेंटरशिप प्रोग्राम. इट्स नॉट लाइक इट इज गोइंग टू वर्क only till it is going to last. So we are purely price based actions or action trading, और उसके ऊपर हमने सेटअप्स बनाया है. So if you are interested, please do check out this particular registration form and Google Doc का link. And this particular November 9th is basically coming Saturday. Now let's go back to the charts of Bank Nifty. तो Bank Nifty में हम लोग पहले मंथली को देख लेते हैं. I think on a monthly time frame, Bank Nifty has been making a fantastic price action. This is exactly for those of you जो लोग भी ऑप्शन बायर्स है या जो लोग भी डायरेक्शनल ऑप्शन सेलर्स है, जो लोग भी मोमेंटम को कैप्चर करते हैं. इससे अच्छी चार्ट हो नहीं सकती अगर आपको मोमेंटम को कैप्चर करना है. I'll tell you the reason. यहाँ पर आपको दिखेगा एक रेक्टेंगल फॉर्मेशन है. ऐसा देखोगे तो ये तो पोलैंड फ्लैग भी दिखेगी, बट चलो अभी के लिए वो पोल को साइड भी रखते हैं अगर हम, और इसको सिर्फ मैं कंसिडर करती हूँ. तो isn't this clean रेक्टेंगल पैटर्न? यहाँ पर आपको एक बहुत ही अच्छी रेक्टेंगल पैटर्न दिखेगी. अब आपको करना क्या है, सिंपल रखते हैं हम लोग, ज्यादा कुछ दिमाग ही नहीं लगाना है. और जैसे कि अक्टूबर की जो सेलिंग है बहुत बड़ी थी इन केस ऑफ निफ्टी, बट अगर आप देखोगे बैंक निफ्टी में इतनी बड़ी सेलिंग नहीं आई. बैंक निफ्टी समवेयर गोइंग टू आउट परफॉर्म निफ्टी इस बार की रैली में, अगर ये रैली आती है तो लेट्स सी. पहले तो ये देखिए, ये रेक्टेंगल पॉइंट्स, ये जो रेक्टेंगल है मंथली टाइम फ्रेम पे, यहाँ पर अगर आपको दिखा दूं तो ये 3100 पॉइंट्स की रेक्टेंगल. अब इसमें सिंपल करना है, इफ दिस रेक्टेंगल ब्रेक्स ऑन द अपसाइड देन वी विल गो लॉन्ग, इफ दिस रेक्टेंगल ब्रेक्स ऑन द डाउनसाइड वी आर गोइंग टू गो शॉर्ट. दैट्स ऑल वी हैव टू डू, नथिंग एल्स. सो व्हाट इज द डिफाइनिंग लेवल्स फॉर अपसाइड एंड द डाउनसाइड इज व्हाट आई एम गोइंग टू. ऊपर की तरफ हमको जैसे ही ये 250 का लेवल ब्रेक करता है, 53 250, that is when one can think of going long in Bank
बैंक निफ्टी फॉर अ पोजिशनल दिस थिंग ऑफ रफली 3000 पॉइंट्स नीचे की तरफ। जैसे ही हमारा ये पर्टिकुलर लो ब्रेक करेगा 1 अगस्त की लो विच इज 49600, दैट इज व्हेन वी आर गोइंग टू लुक फॉर अ फ्रेश डाउनसाइड ऑफ 3000 पॉइंट्स। तो ये बहुत ही अच्छी ट्रेड डेवलप हो रही है। व्हाई? बिकॉज सी यहाँ पर क्या है, बैंक निफ्टी में अगर आप देखोगे ये जुलाई से बैंक निफ्टी कहीं पर भी नहीं गई और इट हैज बीन ट्रेडिंग विद इन दिस 3000 पॉइंट रेंज। कमिंग टू वीकली इज वेरी मच कंफ्यूज। सी यहाँ पर हमको हैमर मिला था बिल्कुल भी ये पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेते हुए। देयर वाज अ कंफर्मेशन कैंडल बट देन अगेन अ रेड कैंडल बट इट नेवर ब्रीच्ड दिस पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन एंड देन अगेन अ ग्रीन कैंडल। सो ये रेड ग्रीन करके कंफ्यूजन कर रहा है। यहाँ पर कोई एक क्लीन बैक टू बैक रेड कैंडल्स भी नहीं है, ना ही क्लीन बैक टू बैक ग्रीन कैंडल्स है पिछले 4 हफ्तों में। तो इट्स रेड ग्रीन कर रहा है। सो यहाँ पर हमको वीकली में भी अभी के लिए जैसे मैंने कहा कि जब तक ये पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं करते तब तक थोड़ा मतलब जब भी ये ट्रेंड लाइन के पास में आएगा तब तक ये बाउंस होने के चांसेस ज्यादा है। अब ऊपर की तरफ कैसे प्ले कर रहे हैं हम पहले तो वो देख लेते हैं। नाउ रिमेंबर इन द वीकली टाइम फ्रेम यहाँ पर अगर आपको दिखा दो ये बहुत ही क्लियर एक इनसाइड बार फॉर्मेशन है। इनसाइड बार का जो सिंपल है ये चाइल्ड बार है और ये मदर बार है। तो चाइल्ड बार का हाई या लो अगर ब्रेक करता है दैट इज व्हेन वी आर गोइंग टू गो लॉन्ग और जैसे ही लो ब्रेक करता है दैट इज व्हेन वी आर गोइंग टू गो शॉर्ट। तो चाइल्ड बार का जो हाई है मैं आपको बता दूं उसका हाई है 52,354 और उसका जो लो है वो है 51,000 के आसपास। तो 51,000 अगर ब्रेक होता है तो वी आर गोइंग टू गो शॉर्ट एंड 52,350 के ऊपर अगर मार्केट टिक जाती है दैट इज व्हेन वी कैन गो लॉन्ग एज पर इनसाइड बार का जो हमारे टेक्निक है उसके हिसाब से। अगर आप लोगों ने हमारे वीडियो नहीं देखा है इनसाइड बार के हिसाब से तो आई विल ट्राई टू पुट दैट एज वेल, तो आप वो एंड में देख सकते हो वीडियो के। कमिंग टू द डेली टाइम फ्रेम, जैसे मैंने कहा कि बैंक निफ्टी ने नया लो नहीं लगाया जबकि निफ्टी ने नया लो जरूर लगाया। अब मैं आपको अगर दिखा दूं ये एक काइंड ऑफ डब्ल्यू पैटर्न जैसे बन रही है। हालांकि इसने ब्रेकआउट अब तक दिया नहीं है। ब्रेकआउट जिस भी दिन इसका ब्रेकआउट आएगा 52,500 52,650 के आसपास दैट इज व्हेन यहाँ पर इसका डब्ल्यू का फॉर्मेशन होगा। उसके पहले ये अभी भी इतने बड़े रेंज में अगर आपको दिखा दूं ये इतने बड़े रेंज में घूम रहा है। इसके लिए वॉलेटिलिटी काफी ज्यादा है। नाउ ऑन द 15 मिनट टाइम फ्रेम व्हाट वी कैन क्लियरली सी इज दैट अच्छा मेरे को बहुत लोगों ने ट्विटर पे पूछा था ये पर्टिकुलर पोलैंड फ्लैग का सेकंड टारगेट्स अभी भी इंटैक्ट है क्या? यस, द आंसर इज यस। जब तक ये लो ब्रीच नहीं करता है ये जब तक ये पिन बार का लेवल नहीं ब्रीच करता विच इज 51,157 फॉर इजियर पर्पस यू कैन कीप इट इन माइंड एज 51,150। जब तक वो लो नहीं ब्रेक करता है तब तक इसका ये जो टारगेट्स है ये अभी भी इंटैक्ट है। अब मेरे को आपको बताना है कि ऑन द 15 मिनट टाइम फ्रेम व्हाट वी कैन क्लियरली सी दैट बैंक निफ्टी इज मूविंग विद इन दिस पर्टिकुलर फॉलिंग चैनल। ओके, सो फॉलिंग चैनल की खासियत ये है इसकी ब्रेकआउट्स बहुत ही पावरफुल होती है। सो अब ये देखिएगा यहाँ पर भी इसने कितने बार टेस्ट किया है, 4 टाइम्स इट हैज बीन टेस्टेड। सो द मोमेंट दिस इमीडिएट रेजिस्टेंस जो मैंने लिखा है ये 51,800 जैसे ही ब्रेक होता है अब हम लोग कितना प्लान कर सकते हैं यहाँ से इसका जोन का अगर मेजर करोगे तो 500 पॉइंट। सो 500 पॉइंट तो इमीडिएट बेसिस पे आपको अपमूव मिल सकती है जैसे ही ये पर्टिकुलर 51,800 को ब्रेक करता है अच्छे कैंडल से और सस्टेन करता है फॉर 15 मिनट्स। दैट्स व्हेन वन कैन प्लान फॉर 500 पॉइंट अपमूव इन केस ऑफ बैंक निफ्टी। एटलीस्ट आप यहाँ तक तो प्लान ही कर सकते हो 52,350 और अगर इसके ऊपर मिलता है तो हमको पता है कि हमको फिर वो इनसाइड बार का ब्रेकआउट मिल सकता है। ठीक है, तो क्या प्लान कैसे प्लान करें अभी हम लोग देखिएगा। यहाँ पर हमारे लिए एक डब्ल्यू फॉर्मेशन होके मार्केट ऊपर गई कल। ठीक है, तो ये डब्ल्यू फॉर्मेशन का नेकलाइन विल एक्ट एज एन इमीडिएट सपोर्ट फॉर अस। नाउ इमीडिएट रेजिस्टेंस मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है और उसके बाद ऑफ कोर्स यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है बट मैंने वो लिखा नहीं है बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि मीनिंगफुल रेजिस्टेंस अगर है तो वो समवेयर अराउंड दिस जोन है। तो इफ इट ऑल टुमारो मार्केट ओपन्स flat and tries to hover this way and then tries to break this particular trend line, just one can plan to go long. And if you want to be much more sure then wait for this 51,800 to be taken out strongly, उसके बाद आप लॉन्ग जा सकते हो फिर वो दिन का जो भी स्विंग लो है उसके एसएल के साथ। और मान लीजिएगा अगर मार्केट बहुत ही बड़ी गैप अप से ओपन होती है समवेयर अराउंड 52,000 वगैरह तो लेट इट कम डाउन। फिर जैसे यहाँ से घूमेगी और यहाँ पर कोई हैमर पैटर्न डब्ल्यू पैटर्न यहाँ ऐसे कोई बुलिश रिवर्सल पैटर्न्स मिलेंगे दैट्स व्हेन वन कैन गो लॉन्ग। इन केस ऑफ गैप डाउन ओपनिंग यहाँ पर ये सपोर्ट्स के आसपास आप थोड़े से बुलिश रिवर्सल पैटर्न्स ढूंढने की कोशिश कीजिएगा जैसे यू टर्न लेते दैट्स अगेन वन कैन गो लॉन्ग। इन केस ऑफ बैंक निफ्टी मैं आपको बता दूं बैंक निफ्टी में अगर मार्केट जब तक ये वाला लो ब्रेक नहीं करता है 50,200 के लोस जो कि इसके आसपास है ये देखिएगा 7 अक्टूबर की लोस तब तक हम अग्रेसिव शॉर्ट नहीं जा सकते। यहाँ पर ऐसा हो सकता है जो लोग भी स्ट्रैंगल्स प्ले कर रहे हैं क्योंकि ये काफी बड़ी रेंज है 51,000 से 52,400 के जोन्स पे दे कैन कंटिन्यू टू प्ले स्ट्रैंगल्स ओनली एंड ओनली अंटिल 52,300 के आसपास। जैसे ही वो लेवल ब्रेक होता है फिर आपको डायरेक्शनल प्लान करना ही पड़ेगा। इनफैक्ट मैं तो आई एम ऑफ द ओपिनियन दैट द मोमेंट 51,800 गेट्स टेकन आउट वन शुड प्लान डायरेक्शनल बिकॉज देयर इज दिस टेकआउट ऑफ दिस पर्टिकुलर फॉलिंग चैनल। सो ये सारे लेवल्स एंड टारगेट्स आई
आई मेंशन ऑन माय ट्विटर की पोस्ट पे, आप वहां से जाके ले सकते हो इस चीज को. Coming to the new segment of our week, which is what are the potential stocks to look for or potential sectors. So first and foremost, stock के list में है HDFC Bank. Now why HDFC Bank? Look at this particular weekly time frame. यहाँ पर बहुत ही बड़ा consolidation हुआ है और ये कोई consolidation छोटी मोटी नहीं है, बहुत ही बड़ी consolidation है. अगर मैं आपको दिखा दूँ, ये almost November 2020 से इतनी बड़ी consolidation है, 1448 days, which is roughly translates to 4 साल. तो 4 साल की consolidation है, बट यहाँ पर मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि यहाँ से 1537 के आसपास से मार्केट कभी टिकती नहीं थी वीकली बेसिस पे. हर बार वहां से ये फिसल के आ जाती थी. फॉर द फर्स्ट एवर टाइम यहाँ पर इसने थोड़ी सी टिकने की कोशिश की, बट वो भी इतनी सक्सेसफुल नहीं हुई. नाउ द गुड पार्ट इज, पहले जहाँ पर बायर्स यहाँ पर एक्टिवेट होते थे, बायर्स अब यहाँ पर ही एक्टिवेट होना शुरू किए, मतलब 1600 के आसपास ही, इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर 1360 1350 जोन्स, विच clearly shows that the buyers are trying to accumulate this particular stock. ये थोड़ा accumulation zone पे बन रहा है. तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि मोस्ट लाइकली यहाँ पर बायर्स एक्यूमुलेशन जोन बना के इस पर्टिकुलर इसको निकालने की कोशिश करेंगे. यहाँ पर अगर आपको मैं सबसे अच्छी ट्रेड बताऊँ तो यहाँ पर एक इनसाइड बार फॉर्मेशन हुई है वीकली में. जैसे ये इनसाइड बार की चाइल्ड बार की हाई निकल जाती है, दैट इज ऑल्सो वन कैन गो लॉन्ग विद छोटा सा एसएल ऑफ दिस वन. बट ये पोजिशनल ट्रेड होगी, ये ऐसा नहीं है कि आप छोटा ट्रेड है, ये थोड़ा पोजिशनल ट्रेड है, मतलब आपको थोड़े होल्ड करने के चांसेस है. बट इफ यू डू दैट देन द स्टॉप लॉसेस शुड बी स्ट्रिक्टली बिलो दिस पर्टिकुलर मदर कैंडल. अगर आपको सही लगता है, चेक विद योर फाइनेंशियल एडवाइजर, दैट इज व्हेन यू कैन, मतलब इसके रूल्स भी है, जैसे आपको यहाँ पर लॉन्ग जाना है वगैरह. ये ट्रेडिंग पोजीशंस में कहाँ ना कहाँ फॉर इन्वेस्टिंग पोजीशन ऑल्सो थोड़ा पोजिशनल व्यू के साथ आप प्लान कर सकते हो इस पर्टिकुलर ट्रेड को. मेरे को ये प्रॉमिसिंग लग रहा है. एंड अगेन एज आई सेड, बैंक निफ्टी मेरा व्यू भी है, इट इज गोइंग टू आउट परफॉर्म निफ्टी दिस टाइम इफ देयर इज अ रैली. सो अगेन HDFC बीन द बिगी ऑफ दिस पर्टिकुलर इंडेक्स. हमारी BTC की ट्रेड अभी भी इंटैक्ट है, जब तक ये पर्टिकुलर 58,800 जब तक ब्रेक नहीं करते हैं, तब तक हमारा ये सारे टारगेट्स अभी भी मतलब इंटैक्ट. वन मोर इंडेक्स दैट आई एम फाइंडिंग इट प्रॉमिसिंग, ऑल्दो इसकी थोड़ी बाइंग के आसपास ही है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, बट थोड़ा सा रिस्क रिवॉर्ड पहले से कम हो चुका है. सो देयर वाज दिस फॉलिंग वेज पैटर्न इन दिस इज निफ्टी PSU बैंक इंडेक्स. ओके, सो यहाँ पर व्हाट वी वर लुकिंग एट दैट देयर वाज दिस फॉलिंग वेज पैटर्न, एंड वो वेज पैटर्न का ब्रेकआउट आ चुकी है. ऑफ कोर्स अगर आप यहाँ से देखोगे तो 6200 से ये ऑलरेडी अभी 6800 के आसपास है. तो अगर यहाँ पर भी लॉन्ग जाना है तो भी SL तो यही होगा 6200, उसके पहले कोई नहीं है. अगेन दिस इज नॉट फ्रॉम एन ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव, इट इज मोर ऑफ एन इन्वेस्टिंग, पोजिशनल इन्वेस्टिंग हो सकती है यहाँ पर. कैसे द वेज दैट वन कैन थिंक ऑफ इज, आप PSU बैंक इंडेक्स के ETFs में देख सकते हो, PSU बैंक इंडेक्स के म्यूचुअल फंड्स में ट्राई कर सकते हो इफ यू वांट टू. अगेन एज आई सेड, इफ दिस इज द एंट्री पॉइंट देन दिस कुड बी द SL. You have to adhere to your SLs, but this is one more investing idea that I am finding it. And then there is one more थोड़ा सा unpopular kind of a thing है, but I did मैंने इसमें हमने दिवाली के पहले हमने थोड़ा सा definitely इसमें positions लिया है, and I'll tell you that. See guys, the idea is हम लोग इतना सब आपसे अगर share कर रहे हैं, and if you really find all these things interesting, because we have not kept only from the perspective of trading, हम investing के बारे में बात कर रहे हैं. तो अगर आपको लग रहा है ये useful है तो please do hit the like button और कमेंट कीजिएगा अगर आपको हमारे ये न्यू सेगमेंट इज वर्किंग फॉर यू, वेदर इट इज इंफॉर्मेटिव और इट रियली हेल्प्स यू इन जनरेटिंग न्यू आइडियाज. देन प्लीज डू हिट द लाइक बटन और कमेंट भी कीजिएगा अगर आपको ये पसंद आ रहा है. तो अगर आप यहाँ पर देखोगे तो एमओ डिफेंस करके एक मोतीलाल AMC की एक डिफेंस सेक्टर है. दिस इज अ थीमेटिक फंड. तो ये बेसिकली क्या करती है, सारे डिफेंस के जो स्टॉक्स है यहाँ पर इसकी इन्वेस्टमेंट होती है. तो नाउ इफ यू वांट टू लाइक लेट्स से डिफेंस के बहुत सारे स्टॉक्स, पारस डिफेंस हो गया या HAL हो गए, BML हो गए, इसमें बहुत सारे जैसे गवर्नमेंट को कॉन्ट्रैक्ट्स मिलते हैं. नाउ लेट्स से इट इज वेरी डिफिकल्ट टू गो एंड पिक एंड चूज which one to invest in, and let's say God forbid if you invest in that only and then if it doesn't turn out well, then obviously it's better to have a diversified portfolio within the defense sector. So this is a better pick. So अगर मैं आपको बता दूं, ये मोतीलाल डिफेंस में के जो ये पर्टिकुलर जो इंडेक्स फंड है, इसमें अगर मैं आपको दिखा दूं इसके कंपोनेंट्स, so these are the components. So हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, HAL, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, सोलार, मजगांव डॉक, कोचिन, ये सारे MTAR, ये सारे आपको यहाँ पर दिखेगा कि इसका वेटेजेस वैसे है. एंड
you can see this HAL का 20% है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स का 20% है. So this is how this particular index fund is designed. So I basically took an exposure here. I am pretty sure कि आप लोगों को बहुत ही हार्ड लगेगा ये बिलीव करने के लिए, बट वी एक्चुअली इन्वेस्टेड ये मंडे को हमने 28 ऑफ अक्टूबर का हमने इन्वेस्ट किया था, तो समवेयर अराउंड 66.5 के आसपास हमने ये लिया हुआ है. ऑब्वियसली आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग कि अभी ये जो भी मेरी इन्वेस्टमेंट आइडियाज है ये मैं अभी 1 या 2 महीने के लिए नहीं रख रही हूँ. आई एम गोइंग टू होल्ड इट फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. व्हेन आई एम सेइंग लॉन्गर पीरियड इट विल बी एनीवेयर बिटवीन 4 to 7 years. सो ओनली अगर आप लोगों का वैसा कोई मैच होता है टाइमलाइन, उसके हिसाब से आप देख सकते हो, वरना दिस इज डेफिनेटली नॉट फॉर यू. इफ यू आर लुकिंग फॉर ट्रेडिंग आइडियाज देन दैट इज व्हाट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. तो अगर आपको ये सही लग रहा है तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट यू हैव टू गो एंड चेक विद योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर डूइंग एनी एक्टिविटी इन मार्केट्स, बी इट इन्वेस्टिंग और बी इट इन ट्रेडिंग. होप यू हैव लाइक दिस पर्टिकुलर वीडियो. अगर आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज डू हिट द लाइक बटन एंड वी विल सी यू सून इन द अपकमिंग वीक. एंड एज आई सेड, प्लीज प्ले safe until US elections are out. Bye bye and take care. Wishing you all a very happy Diwali once again. Bye bye.